45 45-year-old patient, known case of diabetes mellitus Yes, sir. and hypertension, presented for laparoscopic cholecystectomy. What are the Yes. anesthesia consideration and how will you give anesthesia? Yes, sir. I'll start with my I'll start with a detailed history regarding my patient as he or she is suffering from diabetes and hypertension. I'll go with the comorbidities along with these, such as starting with diabetes. I'll concentrate on the diabetic neuropathies, nephropathies, and autonomic dysfunctions with the detailed history ke how long does he or he has this disease, along with that which medication that patient is using, and regarding and their side effects. In hypertension, again I'll go and I'll check the comorbidities regarding that specific disease, along with that the medication and their effects, and their effects on the body. Then I'll discuss the case with the surgeon. When does he wants the surgery? I'll go. Acha. I'll manage. Well, how will you control the patient was on oral hypoglycemics? So what will Yes, you sir. do preoperatively? Yes, sir. I'll change the oral medication to the regular insulin. Regular insulin by yeah, sliding scale. I'll convert that regime to the sliding scale, keeping blood sugars between 120 to 140 milligram per deciliter. Number one. Am I right? What else? Will you give Uh, IV or will you give subcutaneous? Sir, I'll go with IV regime. IV. Okay. IV So slide. Yes, sir. blood sugar preoperatively at the morning of surgery is 200. So what will you do? Sir, it How is an much? elective case. How many units of insulin you will give? It was sorry, I forgot the formula, sir. How much 1 unit of insulin decrease the blood sugar? 4, I guess, for 1 milligram, I guess 10 milligram per deciliter. 1 unit it decreases to 8 to 10 milligram per deciliter. 8 to 10, I think it is 20 or 20 to 25. Okay. So, Okay, sir. okay. So now you are inducing this patient. They are Yes, sir. doing laparoscopic cholecystectomy. What precautions, what problems you can face during induction? First of all, starting with the airway, and the patient will have difficult airway as the patient is diabetic, ankylosing of the temporomandibular joint. Called Again, as with that, ankylosing or no, sorry, glycosylation. glycosylation. Sorry, glycosylation of the joints. I'll have a And minimal the mouth patient opening. will have or patient can have. Can have, can have. Patient can have glycosylation of the joints, decreasing the mouth opening, decreasing the neck movement. Along with that, along with that, the patient is hypertensive, so I may have an matlab swings of uncontrolled blood pressure, or matlab swings of blood pressures. So So how will you prevent? So now you have airway problem, you have swing of blood pressure. Anything else? regurg the Aspiration risk. increased risk of aspiration risk होगा Risk of because of aspiration. diabetes. And So now yes, sir. how will you give? What medication will you give for Sir, intubation? I'll try to make it quick by rapid sequence. Number one, plus minus, risk versus again benefits, or I will try my level best to blunt the
to keep the laryngoscopy time, reducing the laryngoscopy time, and blunting that response, the laryngoscopy response or sympathetic response by short acting. Okay, laparoscopic. What are the effects of laparoscopic surgery? As the sir. Starting with again the airways. As the abdomen is as a pressurized gas is introduced in the abdomen, it will decrease the functional residual capacity of the patient, number one. It will increase the carbon dioxide absorption of the patient, number two. Number three, as sometimes we have to tilt the we have to put the patient in reverse Trendelenburg position, no sorry Trendelenburg position, नहीं अपर एब्डोमेन है, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होगी ना. अच्छा, अगेन मेन दो है कि सबसे पहले पेशेंट का फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन होगी. अगेन अच्छा, हाइपोटेंशन, द पेशेंट कैन हैव हाइपोटेंशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर. 3 हो गए. हाइपोटेंशन होती है इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, तो CO2 की एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए. सर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होगा तो डिक्रीज रिटर्न नहीं होगा. तो ब्लड I may be प्रेशर wrong. ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? इतनी अगर जल्दी पार्टी ना बदलो ना, जो बोल रहे हो उस पे कायम रहो ना. इंट्रा एब्डोमिनल अगर प्रेशर बढ़े, अगर प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से जो है वो हीमोडायनेमिक चेंजेस आ सकती है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में कभी हाइपोटेंशन होती है? आमतौर पे नहीं होती. आमतौर पे हाइपरटेंशन ही हो रही होती है या टैकीकार्डिया हो रहा होता है बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन की वजह से. अच्छा, आप इस पेशेंट में एनाल्जेसिया कैसे देंगे? एनाल्जेसिया कैसे देंगे? अगेन वी हैव two options. Maybe we can place, if there is no contraindication for epidural or regional blocks, we can go for the regional anesthesia or epidural catheter placement. Epidural or for laparoscopic surgery. Regional anesthesia. No, epidural, is it a good choice for regional and for laparoscopic surgeries? No sir. No sir. No, we can give. But there are what other options? I haven't seen anyone. Achha. Yes. Again, regional, I haven't seen anyone. Yeah, exactly. Yes. So why are regional you anesthesia? Why are you telling? If you want to defend, then defend it. ये ना वो फॉरेन पार्टी बदल लो. अभी मैंने आपसे सिर्फ क्वेश्चन मार्क देखा है तो आप बदल दो. उनसे कहो कि I will keep it if, for example, if there is they are doing too much manipulation. लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी 2 पोर्ट्स होती हैं, 3 पोर्ट्स होती हैं, हो सकता है बहुत प्रोलॉन्ग प्रोसीजर हो जाए. तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आई कैन कंसीडर टू हैव एपिड्यूरल. ठीक है, मल्टीमोडल एनाल्जेसिया देना है ना. अदर दूसरे ऑप्शंस क्या है आपके पास? टैप ब्लॉक है, मल्टीमोडल एनाल्जेसिया. मल्टीमोडल एनाल्जेसिया का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीमोडल एनाल्जेसिया? Like इसमें हम more than one drug basically use करते हैं, such as starting from paracetamol, along with that opioids, opioid analgesics, NSAIDs, etc. ठीक है, लेकिन इसका चले मैं इसमें बता देता हूँ. एक तो बात ये कि आपने डायबिटीज का जिक्र किया, आपने हाइपरटेंशन का जिक्र नहीं किया. ठीक है सर, जी हाइपरटेंसिव. एग्जैक्टली. तो आपको सिर्फ इसको कंबाइन करके ये कहना था कि द पेशेंट्स हु हैव डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, they have more chances of cardiac mortality, morbidity intraoperatively. ये जुमला याद कर लीजिए. Exactly sir. Yes, ये चांसेस होते हैं ना, एरिथमियास के ज्यादा चांसेस होते हैं, स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर के ज्यादा चांसेस होते हैं. और आपने देखना होता है कि इस पेशेंट के अंदर एंड ऑर्गन डैमेज कितना है. एंड ऑर्गन डैमेज बिकॉज ऑफ डायबिटीज, मेलाइटस एंड हाइपरटेंशन इन द फॉर्म ऑफ रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, माइक्रोवैस्कुलर ये कॉम्प्लिकेशंस हो गई, और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस लाइक CVA, ट्रांजिट इस्केमिक अटैक, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज की वजह से इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होती है, और जो इस्केमिक हार्ट डिजीज होती है उसकी वजह से एरिथमियाज हो सकते हैं, इस्कीमिया हो सकता है, इन्फाक्शन हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है.
ये आपका आंसर हर कंडीशन में ये आंसर आपका सही है, गलत नहीं है। अल्टीमेटली तो इनमें यही सारी चीजें हो सकती है ना। और तीसरी चीज इसके अंदर ये है, स्पेशली डायबिटीज के अंदर ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर आते हैं, ठीक है। लेरिंगोस्कोपी में एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स आएगा, और इंडक्शन के वक्त पेशेंट कोलैप्स भी हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्सेजरेटेड। नॉर्मली जब आप प्रोपोफोल या थायोपेंटोन देते हैं तो हमारा बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स आता है, टैकीकार्डिया होता है, और वो उसको काउंटरएक्ट कर लेता है, लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर वो रिफ्लेक्स सही नहीं होता, ठीक है। तो ये बात हो गई। दूसरे जो आप एयरवे के बारे में बता रहे थे, आप इतना मुश्किल लफ्ज क्यों बोल रहे हैं? आपको देखें, वाइवा आप पंजाबी में भी दे सकते हैं। अगर आप पंजाबी में एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंधी में एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो खुदा के लिए इंग्लिश बोलने की कोशिश ना करें। इंग्लिश बोले तो सही बोले, वरना ना बोले, ठीक है। अब आप इतने मुश्किल लफ्ज आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको उसका पता ही नहीं है, एनकाइलोजिंग और ग्लाइकोसाइलेशन में आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो आप ये कहें कि ग्लूकोज जो जॉइंट्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, स्टिफ जॉइंट सिंड्रोम होता है, ठीक है। इनकी वजह से जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं ग्लूकोज, हाई ग्लूकोज लेवल की वजह से। इस पे आपको फेल नहीं करेगा एग्जामिनर, लेकिन आप अपना इंप्रेशन गलत क्रिएट कर रहे हैं। देखिए वो वहां पर वाइवे के अंदर वो ये भी देख रहे होते हैं कि ये बंदा हमें रिप्रेजेंट करना है इसने, तो क्या ये एनेस्थीसिया के कंसल्टेंट के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकता है हमें या नहीं, ठीक है। ये आप जो बोले जबान आप कॉन्फिडेंस से बोले, और ये जुमले याद कर लें कि जॉइंट की ग्लाइकोसाइलेशन का ना भी अगर आपको याद रहे तो जॉइंट की स्टिफनेस। तो आपकी एक ऑप्शन ये होती है कि हर पेशेंट में एक जैसी डिग्री नहीं होती, आप उसको एवेलुएट कर लेंगे, प्रेयर साइन करवा के उसकी नेक की मोबिलिटी देख लेंगे। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा उसकी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, तो उसमें आप सस्पेक्ट करेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक ऑप्शन, एक चीज प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम है कि इसके अंदर रिलेटिवली गैस्ट्रोप्रेसिस की वजह से एस्पिरेशन का रिस्क भी होता है, तो आप इसके अंदर एस्पिरेशन प्रोफाइलैक्सिस कंसीडर करेंगे, और आप इवैल्यूएट करके इधर यू कैन डू रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन। लेकिन डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट में स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर होते हैं, तो इन एडिशन टू स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग यू कैन कंसीडर इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इफ यू हैव एनी डाउट। उसके बाद जो ग्लूकोज का कंट्रोल था वो आपने बिल्कुल सही बताया है, और उसके अंदर आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं लॉन्ग एक्टिंग को शॉर्ट एक्टिंग में, और इंसुलिन अगर इंसुलिन डिपेंडेंट भी है तो भी आप उसको आप सबकुटेनियस प्री ऑपरेटिवली दे सकते हैं। इंट्रा ऑपरेटिवली इट इज बेटर टू गिव आईवी, क्योंकि बेहतर कंट्रोल होता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा प्रिडिक्टेबल होती है। आप और आईवी इन्फ्यूजन से बेहतर होता है, सॉरी बोलस से ज्यादा बेहतर होता है इन्फ्यूजन। आप इन्फ्यूजन चला दें और आप अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप हाफ आवरली टू 1 आवरली आप ब्लड शुगर मॉनिटर कर लेंगे, ठीक है सर। इसमें स्लाइडिंग स्केल वाला इन्फ्यूजन अभी भी हम कहते हैं, अभी तो हमें वीआर ट्रिपल आई या सिर्फ जीकेआई रेजिम में नहीं बतानी। यार आपकी मर्जी है, देखो ये इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। आपने टारगेट उनको बता देना है कि भाई मैं इसका ब्लड प्रेशर का जो मेरा इससे कहें कि देयर आर सो मेनी वेज टू कंट्रोल इट, इसका ये आंसर बेहतर होगा। देयर आर सो मेनी वेज टू कंट्रोल इट, आवर एम इज टू मॉनिटर हाफ आवरली टू 1 आवरली, एंड आवर टारगेट इज 120 टू 140 या 180 व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर आप कर सकते हैं, या आप आईवी दे सकते हैं बोलस, या आप आईवी दे सकते हैं इन्फ्यूजन। अब इतने मुश्किल लफ्ज अगर आप बोलना चाहते हैं शुरू में तो आप बोल दें। दूसरा सर जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स है, मतलब उसमें भी तो चंद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हैं जो हमने बंद करनी है, बाकी तो कंटिन्यू रखते हैं। उसके अंदर दो तरह की होती है ना, एक जो हाइपोग्लाइसेमिक मेटफॉर्मिन को कंटिन्यू रखते हैं, यूग्लाइसेमिक यूरियास को सिर्फ वार्निंग डोज। जो यूग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं उनसे आप क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एसिडोसिस हो सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस होता है इनसे, ठीक है, मेटफॉर्मिन से। तो आप ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पेशेंट जरूरी नहीं है ना, ये पेशेंट क्यों आप एक रीजन मुझे बताएं कि आपको क्यों कन्वर्ट करनी चाहिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक को आईवी में? एक तो एनपीओ का होता है, एनपीओ का होता है ना, आपकी मर्जी से तो नहीं एनपीओ ब्रेक होना। अगर उसकी जीआई की सर्जरी हुई है और आपने उसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक नहीं दिया तो उसकी स्ट्रेस रिस्पांस की वजह से उसकी ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, तो इसलिए बेहतर होता है कि आप उसको आईवी में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स आल्सो ऑन कि हाउ मेनी मील्स पेशेंट इज मिसिंग, ठीक है, कि पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली कितने मील्स मिस कर रहा है, और पेशेंट कब एनपीओ ब्रेक होगा। क्योंकि आप उसको आईवी फ्लूइड लगा के आप उसको ग्लूकोज वो तो नहीं दे सकते ना, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक ना ग्रे एरिया है, इसमें जितनी डिटेल में जाओगे उतना फंसोगे। इसलिए अपने आप को बिल्कुल सिंपल रखो
कि there are so many regimes which may be used, IV, subcutaneous, infusion, but actually more important is the target which you want to achieve. You have to make the blood sugar readings that way, and you can have serial blood sugar measurements. ठीक है. Hypertension का भी इसी तरीके से है कि you have to continue. There are some school of thought to stop ACE inhibitors, but if there is no recommendation to stop it, you can continue it, and if you are continuing it, you are expecting more fall in blood pressure. That's it. और अगर अनकंट्रोल्ड है तो स्विंग्स आएंगी अनकंट्रोल उसमें. अच्छा, लेप्रोस्कोपी के लिए देखें, ये एक मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि लेप्रोस्कोपी बहुत कॉमन है. आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें. पहला इस लेप्रोस्कोपी का स्टेप होता है कि जब ट्रोकार डालते हैं, तो ट्रोकार डालने की वजह से वेगोवेजल रिस्पॉन्स आता है. ट्रोकार डालने की वजह से विजरा डैमेज हो सकता है. ट्रोकार डालने की वजह से वेसल डैमेज हो सकती है. पहला स्टेप, नंबर 1. नंबर 2, जब गैस को डालते हैं तो गैस उस वक्त वेसल में जा सकती है. गैस जब ग्रेजुअली नीमोपेरिटोनियम होता है तो उसकी वजह से फिजिकल इफेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से एंडोट्रेकल ट्यूब ऊपर जा सकती है, एंडोब्रैंकियल हो सकती है, डायफ्राम ऊपर पुश होगा. उसकी वजह से ही अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से एओर्टोकेवल कंप्रेशन के साइन, एब्डोमिनल हाइपरटेंशन के साइंस आ सकते हैं. ये इतने जुमले में आपको खत्म हो गया. आप एयरवे से फिर वही वाली कहानी शुरू करते हैं, हम एयरवे से शुरू करेंगे. ओ भाई, आपने कोई अलिफ बे पे आपने लेसन थोड़ी सुनाना है, आपको वो चीजें बतानी है ना. तो आप कहें कि जी जब ट्रोकार डालते हैं तो उस वक्त प्रॉब्लम्स होती हैं, जब गैस को इंसफ्लेट करते हैं तो उस टाइम पे गैस एम्बोलिज्म हो सकता है, और ग्रेजुअली जब वो नीमोपेरिटोनियम क्रिएट हो जाता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. फिर उसके बाद वो एटिपिकल सी पोजीशनिंग करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है वो ट्यूब की डिस्लॉजमेंट हो सकती है. ठीक है, और उसकी वजह से आपको मजीद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है. और तीसरी स्टेप होता है कि जब ग्रेजुअली CO2 एब्जॉर्ब होनी शुरू होती है तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है और सिंपैथेटिक रिस्पांस आता है. अब आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सी साइंस ऐसी है. ये आप इस तरीके से अगर आप बताएंगे तो वहां पर उनको ये लगेगा कि ये बंदा कॉन्फिडेंस से बता रहा है. अगर वहां पर आप ABC के चक्करों में रह जाएंगे या सिस्टमैटिक इफेक्ट बताने की शुरू करेंगे, देखो वो होता है आपकी हेल्प के लिए, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं होता. ये जो भी होता है ना सिस्टम, ये ABC या प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, ये सारा आपकी हेल्प के लिए होता है. ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इस तरह बताएंगे आपको भूलेगा नहीं. ट्रोकार इंसर्शन, न्यूमोपेरिटोनियम, ग्रेजुअली एब्जॉर्प्शन, 3 स्टेप्स हैं. और इसी तरीके से डायबिटीज का ड्यूरेशन, कंट्रोल, एंड ऑर्गन डैमेज, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स, इंसुलिन, और आपका जो है वो इंट्राऑपरेटिव कंट्रोल. आपने जब देनी है इंसुलिन तो आप पोटेशियम को आप मेक श्योर करेंगे. ठीक है, बाकी आपने स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग, इसके अलावा आपने टेम्परेचर को मॉनिटरिंग है या आपका यूरिन आउटपुट की मॉनिटरिंग है वो आप करेंगे जस्ट लाइक एनी अदर पेशेंट. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप ABGs कर लें इंट्राऑपरेटिवली. इफ यू हैव एनी डाउट तो आप फ्लूइड पूछ सकते हैं कि भाई रिंगर देना है या नॉर्मल सलाइन. तो उसने कहा कि देयर इज नो कंपेलिंग इंडिकेशन टू गिव नॉर्मल सलाइन, यू कैन गिव रिंगर लैक्टेट. और जो है वो बैलेंस सॉल्ट, प्लाज्मा लाइट इज द बेस्ट वन. प्लाज्मा लाइट है तो इट इज अ बेटर वन. अगर आपसे वो नहीं पूछ रहा तो ये क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्मल सलाइन देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि रिंगर लैक्टेट से प्रॉब्लम हो जाएगी. हालांकि कंसेंसस गाइडलाइन के हिसाब से रिंगर लैक्टेट, प्लाज्मा लाइट आप दे सकते हैं. इवन नॉर्मल सलाइन का मसला सिर्फ ये है कि ऑलरेडी ये पेशेंट वो होते हैं एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं. तो इसके अंदर आप बेहतर है कि आप ऐसा सोल्यूशन ना देंगे जिससे मजीद एसिडोसिस वर्सन. ठीक है, बाकी ये कि आप वॉल्यूम लोड कर लें. एक और बात ये भी आप बता सकते हैं कि क्योंकि जब एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है नीमोपेरिटोनियम की वजह से, तो इट इज बेटर टू गिव सम फ्लूइड एट द स्टार्ट so that to counteract any decrease in venous return when they are doing the pneumoperitoneum. मल्टीमोडल एनाल्जेसिया का मतलब ये नहीं होता कि आप डिफरेंट मेडिकेशंस दे रहे हैं. तो खेल कूद थोड़ी हो रही है कि मुख्तलिफ कंपनीज की दवाइयां दे रहे हैं आप. मल्टीमोडल एनाल्जेसिया का मतलब ये है कि यू आर ब्लॉकिंग द पेन पाथवे इन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ देयर ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन एंड परसेप्शन. ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन एंड परसेप्शन. पैरास्टामोल परसेप्शन पे कर रही है, एनसेड जो है वो उसकी मॉड्यूलेशन कर रहा है, वो हाइपर एल्जीजिया जो हो रहे हैं, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसको ब्लंट कर रहा है. जो आपका लोकल एनेस्थेटिक आप लगा रहे हैं वो उसका ट्रांसडक्शन और ट्रांसमिशन को रोक रहा है. आप गाबापेंटिन जो देते हैं वो भी परसेप्शन पे भी करता है, उसका ओपियोइड का स्पेयरिंग इफेक्ट होता है.
और अगर आप मल्टी मोडल एनाल्जेसिया दे रहे हैं तो एक तो आप डिफरेंट स्टेप्स पे ब्लॉक कर रहे हैं, तो आपका एक्यूट पेन का जो मैनेजमेंट का होता है कि यू स्टार्ट विद मैक्सिमम एंड यू कम डाउन ग्रेजुअली। यानी कि उसकी एग्जांपल याद रखने के लिए ये है कि अगर आपकी किसी से लड़ाई होगी तो आप हल्का सा उसको स्लैप करेंगे तो वो मौका मिलेगा, वो आपको जोर से थप्पड़ मारेगा और आप गिर जाएंगे। तो एक्यूट पेन की मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यू स्टार्ट विद मैक्सिमम। आप बिल्डोजर चला देते हैं पेन को, आप पेन के ऊपर बिल्डोजर चलाएं और फिर ग्रेजुअली कम डाउन। कि आपने ओपियाइड भी देना है, आपने पैरास्टामोल भी देनी है, आपने गाबापेंटिन भी प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया के लिए आप बता दें कि प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया होता है कि पेन सेंसेशन स्टार्ट होने से पहले आप ऐसी चीज दे रहे हैं जो पेन के रिस्पॉन्स को, यानी कि आप ब्राइब कर रहे हैं कि भाई मैंने कोई काम करना है, चांद चढ़ाना है, तो पहले ही हम ब्राइब कर रहे हैं ताकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ही कम हो जाए। तो गाबापेंटिन, पैरासिटामोल और जो एनसेड्स देते हैं प्री ऑपरेटिवली, दैट इज यू आर ब्राइबिंग द पेन सिस्टम। आप प्रीएम्प्टिवली उसको दे रहे हैं ताकि वो रिस्पॉन्स ही कम हो जाए, आप पहले इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को आप ब्लंट कर रहे हैं। और इंट्राऑपरेटिवली आप जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है उसके लिए आप वेंटिलेशन को ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि CO2 का लेवल ना बढ़े। ठीक है, आप उसकी वेंटिलेशन को इसी तरह ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि CO2 का लेवल वॉश आउट हो जाए, CO2 मैनेज रहे। आपने डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को मेंटेन रखना है ताकि वेगल रिस्पॉन्स ना आए। ये 5-6 बातें हैं जो आपने इसके अंदर बतानी है। और पोस्ट ऑपरेटिवली आपने अवेक एक्सटुबेट करना है, और आप ब्लड शुगर आपने पोस्ट ऑपरेटिवली भी आपने मेंटेन रखनी है। डायबिटिक पेशेंट्स में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, दैट्स इट। PONV के लिए आप डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर डेक्सामेथासोन अवॉइड कर सकते हैं, सिंगल डोज से इतना ज़्यादा नहीं होता फ़र्क। अगर आप देखेंगे अगर रिस्क ऑफ PONV ज़्यादा है तो आप रिस्क वर्सेस बेनिफिट देख लेंगे। अगर पेशेंट इंसुलिन पे है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेक्सामेथासोन से उसकी ब्लड शुगर बढ़ जाए, सिंगल डोज से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ऑन्डेनसेट्रॉन आप दे देंगे। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? अलवीना आप बताओ। There is a patient 35-year-old known case of rheumatoid arthritis. This patient is presenting for parambilical hernia repair. 35-year-old female with known case of rheumatoid arthritis. So how will you evaluate? What are the preoperative, what are the anesthesia concerns, and how will you manage this case? जी, आवाज आ रही है आपको अलवीना? जी जी सर, आ रही है मुझे। Rheumatoid arthritis, 35-year female, presenting for parambilical hernia repair. ठीक है सर। सर पहले तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट है हमारे पास, तो हो सकता है कि मैं स्टार्ट करूंगी, इससे पूरी हिस्ट्री पूछूंगी और एग्जामिनेशन और लैब्स का जो प्री ऑप एरिया में जो मेरे कंसेंसस होंगे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मैं रूल आउट करूंगी कि उनकी जॉइंट मोबिलिटी कितनी है, कोई कोमॉर्ब्स तो नहीं है, डायबिटीज हाइपरटेंशन की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई जॉइंट स्टिफनेस तो नहीं है, उन्हें माउथ ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उनका वेट कितना है, ओबेसिटी क्लास, अगर ओबेसिटी होगी तो स्टॉप बैंक स्कोरिंग कर लेंगे उसमें। और जो है उसके अलावा सर Is there association of rheumatoid arthritis with obesity? सर No. Okay. सर Okay, good. एसोसिएशन इज सर एसोसिएशन नहीं कह सकते हम इनकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ओबेसिटी के। देखिए, कहने को तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज कुछ भी हो सकता है ना ये, लेकिन कोई क्लियर कट एसोसिएशन तो नहीं है ना कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में ओबेसिटी हो सकती है। एक रीजन होती है सिर्फ, आप प्रूव कर दें, अब आपने बोला है तो आप प्रूव कर दें। एक रीजन है सर। अच्छा सर, एक रीजन है, सोचे जरा। क्या ये पेशेंट स्टीरॉइड्स लेते हैं? ओके सर, ठीक है, स्टेरॉइड हिस्ट्री। देखो असल में बात ये होती है वाइवे में ना, आपने वो बात बोलनी होती है जो आप डिफेंड कर सके। ठीक है सर। ठीक है, मैंने आपको रीजन बता दिए, अब आप डिफेंड कर लेंगे। वहां पर कोई ऐसी चीज ना बोलेंगे जो आप डिफेंड नहीं कर सकते।
ठीक है सर। ठीक है सर और प्रीवियस कोई कोई पहले कोई सिजेरियन सेक्शन या कोई ऑपरेशन हुआ है उनका, नहीं हुआ, ये पूछ लेंगे। अब और इसका प्रीवियस इसके लिए ना एक सिंगल वर्ड आंसर है कि यू विल टेक द पेशेंट्स डेमोग्राफिक हिस्ट्री विद हिज एज, सेक्स, जेंडर, क्या नाम है उसका, ये जो कह रहा हूँ, प्रीवियस मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री, ब्लड ग्रुप, बीएमआई एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इसके लिए बिल्कुल जो 10 सेकंड्स में जुमला आपका खत्म हो जाए। patient demographics related to patient, anything related to patient, and then you will come to rheumatoid arthritis. तो rheumatoid arthritis के बारे में एक दो वर्ड्स आपको बोलने आने चाहिए। क्या बोलेंगी? What is rheumatoid arthritis? Sir, it is the stiffness of the joint. देख ले, ज्यादती है ये। स्टिफनेस ऑफ जॉइंट तो बहुत छोटी चीज है, वो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी हो सकती है। क्या रोमाटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स होती है? नहीं सर। सर टेरिबल डिजीज, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये डिजीज था। सर ये एक तो क्रॉनिक डिजीज है सर, इट्स अ मल्टी सिस्टेमिक डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज भी है। इट्स अ ऑटो इम्यून डिजीज, मल्टी सिस्टेमिक। जी सर। ठीक है, पीछे आपने बोला कि हो सकता है, नहीं, इसके अंदर डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि इसके अंदर नेक की मोबिलिटी का मसला होता है, माउथ ओपनिंग का होता है, क्योंकि इसमें जो टीएम जॉइंट है वो भी इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर सर्वाइकल स्पाइन भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप ये कहेंगे देयर इज हाई इंसिडेंस अकॉर्डिंग टू, या यही जुमला आप बोल दें कि आई विल, जो आपने शुरू किया था ना, आई विल डिटेल हिस्ट्री, तो इसके लिए आप जुमला सारी डिजीजेस में आप ये फिट क्यों नहीं कर रही है कि I will evaluate the patient on the basis of history, examination and relevant investigation. I will see how much is the damage created by the disease. in आगे आगे जुमला आप मुकम्मल कर लें। एयरवे, रेस्पिरेशन, तो अब आप कहेंगे कि रोमाटॉइड आर्थराइटिस और कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जिनका एक कहानी तो इनकी डिजीज होती है और उससे ज्यादा कहानी उसकी ट्रीटमेंट होता है कि ये पेशेंट के अंदर एनीमिया होता है, बोन मैरो सेपरेशन होती है इम्यूनोसेप्रेसेंट्स की वजह से, मीथोट्रेक्सेट ले रहा होता है उससे बोन मैरो सेपरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद एनसेड्स ले रहा होता है, उसकी वजह से प्लेटलेट डिसफंक्शन होता है, उसकी वजह से जीआई ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। एम आई राइट? जी सर। और उसके बाद जो स्टीरॉइड्स की वजह से आपकी ओबेसिटी भी हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका जो इसमें लिवर डिसफंक्शन होता है, रीनल डिसफंक्शन होता है, एनसेड्स की वजह से उसकी किडनीज जो है वो फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये नहीं कि अब आपने ये मल्टी सिस्टेमिक, इट हैज मल्टी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ डिजीज बट द मेडिकेशन पेशेंट इज टेकिंग। तो इसके अंदर दो तरह की मेनली बेसिकली तीन तरह की डिजीज होती है। नंबर 1 सिम्टोमेटिक रिलीफ, नंबर 2 डिजीज मॉडिफाइंग, और नंबर 3 इम्यूनोसप्रेसेंट्स। ये तीन तरह के इसमें ट्रीटमेंट होते हैं। जो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जो देते हैं वो एनसेड्स होते हैं। ठीक है, एनसेड्स होते हैं या स्टीरॉइड्स भी होते हैं। बाकी डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स होती हैं, पेंसिलामीन और गोल्ड और एजाथायोप्रिन। ठीक है, और कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं जैसे मीथोट्रेक्सेट। तो आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में आना चाहिए, इतना ही काफी है जितना मैंने आपको बोला है ना। अगर आपको इतना भी याद रह जाता है तो दैट इज मोर देन एनफ, और इसको आप फिट करें हर बीमारी में। ये सुबह हम लोगों ने माइसीनिया ग्रेविस किया था, अपनी थी माइसीनिया ग्रेविस में भी यही है, एक कुछ प्रॉब्लम डिजीज से है और कुछ प्रॉब्लम उसके ट्रीटमेंट से है। ठीक है, और हर रोमाटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट एक जैसा नहीं होगा, लेकिन आप ये बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू द डिजीज सिवियरिटी इसके अंदर एयरवे की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसकी माउथ ओपनिंग बहुत लिमिटेड हो सकती है, इसके अंदर नेक की मोबिलिटी का इशू होता है क्योंकि इसके अंदर जो सर्वाइकल स्पाइन है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, इसके अंदर पोजीशनिंग की प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अंदर अगर कोई ऐसी सर्जरी होनी है जो लिथोटमी में होनी है तो पेशेंट की लिथोटमी पोजीशन नहीं बनेगी। ठीक है, इसके अंदर आईवी लाइंस की प्रॉब्लम होती है, कॉन्ट्रैक्चर्स से बने हुए होते हैं, इसमें आईवी लाइंस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो ये मतलब लाइक ये कि आप इसको कहानी की तरह याद आपको करना पड़ेगा। अगर आप किताब के सफ़ा याद करके रिप्लेस करने की कोशिश करेंगी अलमीना तो प्रॉब्लम होगी। कोशिश करें 3, 4, 5 दफ़ा इसकी हर डिजीज की और काम की बातें देखें। आपको लंबी कहानी नहीं बोलनी, आप कोशिश करेंगे हर डिजीज का अपने एनेस्थीसिया से रेलेवेंस ढूंढें। हर डिजीज का आपको कुछ ना कुछ एनेस्थीसिया से रेलेवेंस मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो एयरवे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर एफ्यूजन्स होती हैं और क्या क्या इसमें होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का पैटर्न हो सकता है।
ठीक सर। ठीक है, तो जिशान को चीज मिस तो नहीं की? स्ट्रेस डोज स्टेरॉइड देने। हाँ, स्टीरॉइड की रिप्लेसमेंट देनी है आपने, अगर वो लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स में, और आपने इसमें लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर रीनल फंक्शन टेस्ट, सीबीसी, कोएगुलेशन प्रोफाइल, आपने सब चीजों को देखना है, क्योंकि इसमें सब चीजों की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक सर। और जीशान, इसमें और कोई चीज मिस तो नहीं की हमने? पल्मोनरी सिस्टम में और क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का पैटर्न होता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, और क्या चीज होती है? वो जो नोड्यूल्स बनते हैं, नोड्यूल्स भी होते हैं ना इसी में ही। ठीक है, तो अब आगे वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ये केस आप एपिड्यूरल में करवा सकती हैं, पैराम्बलाइकल हर्निया? सर डिपेंड करता है पेशेंट की जॉइंट स्टिफनेस कितनी ना है, और वो पेशेंट अगर सिटिंग पोजीशन में इतनी देर बैठ सकता है तो करेंगे, वरना फिर हम प्रोसीड नहीं कर सकेंगे एपिड्यूरल में इसको। यानी एपिड्यूरल की तो रीजन और ये भी होगी ना कि जॉइंट की वो क्या उसको कहते हैं, जो आपकी एपिड्यूरल प्लेसमेंट इसके लिए डिफिकल्ट हो। ठीक है जी सर, वही। और कोएगुलोपैथी हो सकती है, तो इस वजह से जी सवाल ये कि ये आप कर सकते हैं अगर आपको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है और पेशेंट टॉलरेट कर सकता है तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर है। और साथ आप ये भी जुमला बोल सकते हैं, अगर आपको सर्जन ये एग्जामिनर पूछता है पैराम्बलाइकल हर्निया, तो सुप्राम्बलाइकल भी हो सकता है, इंफ्राम्बलाइकल भी हो सकता है। डाइवेरिकेशन क्या कहते हैं, डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई। ठीक है, जो रेक्टाई ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर इंफ्राम्बलाइकल है तो आप इवन स्पाइनल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? रीजनल में ये हो सकता है, आप कह सकते हैं कि इसमें जी जीशान, एनी कमेंट्स? रीजनल एनेस्थीसिया इन रूमेटॉइड। इसे रीजन में हो सकता है, पॉसिबल है, स्पाइनल में भी हो सकता है और उसमें भी एपिड्यूरल में भी हो सकता है। ठीक है, तो बाकी ये है कि आपने ये पेशेंट क्रॉनिक एनसेड्स पे होंगे तो आपको पेन कंट्रोल डिफिकल्ट हो सकता है। अगर पेशेंट ये अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन में है और पेशेंट प्री ऑपरेटिवली गाबापेंटिन या ओपियाइड्स ले रहा है तो आपको वो ओपियाइड्स की भी रिप्लेसमेंट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक है, देखने में बहुत मुश्किल लगता है, अगर आप इसकी कहानी पे आए तो ये बनाना बहुत आसान है। ऑटोइम्यून डिजीज है, हर सिस्टम में कुछ ना कुछ बोल दे, बोन मैरो में भी करता है, हार्ट में भी करता है, लिवर में भी करता है, लंग्स में भी करता है, किडनीज में भी करता है। तो मुझे बताओ ये बताना आसान है कि मुश्किल है? सर। ठीक है, हमारे रिलेटेड बेसिकली 3-4 ही चीजें रूमेटॉइड में बनती है ना। सबसे पहले हमारा एयरवे का कंसर्न है, उसके बाद पोजीशनिंग का कंसर्न है, ये दोनों जॉइंट से रिलेटेड बातें हैं। फिर हमारी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होगी इसमें, और फिर ड्रग्स की वजह से जो डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हैं ड्रग्स की वजह से, वो सारे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद। ठीक है, तो ये आपको एक जनरल मैसेज है, कोई भी बीमारी बतानी हो पहले पूछें कि वो बीमारी का कबीला क्या है, बीमारी का कबीला क्या है। ठीक है, उसके बाद देखें कि उसका हमारी मस्जिद पे क्या इफेक्ट हो रहा है। हमारी जो 1.5 इंच की मस्जिद है, या हमने सुइयां खुबोनी होती हैं या हमने एयरवे को मैनेज करना होता है। तो सुई खुबोने में कोई मसला तो नहीं है, एयरवे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, और हमारी जितनी दवाइयाँ हैं वो लिवर से उनका मुरब्बा बनना है और किडनी से उन्होंने जहन्नुम वासिल होना है। ठीक है, तो आपको लिवर के मेटाबॉलिज्म का पता होना चाहिए और किडनी से एक्सक्रीशन का होना चाहिए। और जब मरीज को फूके मारनी है तो लंग्स फेफड़े काम करने चाहिए, वनहीं तो पाइप भी हमने डाल दिया तो भी हमसे लंग्स वेंटिलेट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ना सिर्फ ये कि एयरवे की मैनेज करने की प्रॉब्लम है, इसके अंदर लंग्स की वेंटिलेशन की भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एक डिजीज है जो आप लोगों से इसी से रिलेटेड, देखें इसी से मिलता जुलता होगा एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, जिसके अंदर HLA-B27 पॉजिटिव होता है और उसके अंदर कुछ बीमारियों की टेंडेंसी होती है, उसमें सार्काइडोसिस होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है। ठीक है, और उसके अंदर यूवियाइटिस होता है, यूरेथ्राइटिस होता है। तो ये कहते हैं सीरो नेगेटिव, ये जो होता है ये सीरो पॉजिटिव होता है, यूजुअली इसके अंदर रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव होता है, तो इसको कहा जाता है सीरो पॉजिटिव। और सीरो नेगेटिव कुछ होती हैं जिनके अंदर पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है और मॉर्निंग स्टिफनेस दोनों में ही होती है। ठीक है, और उसके अंदर कुछ डिजीजेस से होती है एसोसिएशन। तो सारे मरीजों में सारी चीजें नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें कुछ मरीजों में हो सकती हैं। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट से बताऊंगा कि एक्चुअली मेरा HLA-B27 पॉजिटिव है और मुझे रिकरेंट यूवियाइटिस भी होता है और मेरे सारे जॉइंट्स भी स्टिफ हैं। दिस इज पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड आई एम आल्सो टेकिंग इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटी TNF, एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा।
तो इन पेशेंट्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इनके अंदर स्पाइन की, वो कहते हैं बैम्बू स्पाइन, तो इनके अंदर खुदा न खास्ता बैम्बू स्पाइन भी हो सकती है। और इनके अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम की, ये जो एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक चीज़ है, एक और जो रोमाटोलॉजी से रिलेटेड है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में कुछ बातें इससे मिलती जुलती होंगी, ज़्यादा उसके अंदर जॉइंट्स की डिफॉर्मिटीज का, और सॉरी ये जो नी की पेन और स्टीरॉइड्स और जो है ना एनसेड्स रिलेटेड चीजें होंगी। अगर एक पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, तो उसके अंदर ये चीजें आ जाएंगी। इसी तरीके से जब पेशेंट स्टीरॉइड्स ले रहा है, तो इन एडिशन टू स्ट्रेस डोज और ये सारी चीजें ना, आपकी बोन्स की ऑस्टियोमलेशिया होने के चांसेस होते हैं, तो इसमें फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रोमाटोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, हमारे सेटअप में क्योंकि टीबी बहुत कॉमन है, ठीक है, तो एक टीबी का पेशेंट होगा, उसके अंदर क्या एहतियात करनी होगी? एक टीबी का पेशेंट है, उसकी कोई सर्जरी होनी है, तो व्हाट विल यू बी डूइंग? वो पेशेंट जी कौन बताएगा? आप ही बता दो अलवीना, इसको आप ही मुकम्मल कर लो। टीबी के पेशेंट में क्या एहतियात होगी? सर एनेस्थीसिया रिलेटेड। जी जी सर टीबी के पेशेंट में अगर प्रीवियस ट्रीटेड पेशेंट है या नहीं है, ये पूछेंगे हम उनसे। ठीक है, अगर ट्रीटेड है तो कितना टाइम हुआ है, और अभी कोई इन्हें रिसेंट कोई इशू तो नहीं है। कॉफ की हिस्ट्री, वेट लॉस की हिस्ट्री पूछेंगे उनसे। हो सकता है हमारे ना जब वेंटिलेशन में कोई प्रॉब्लम हो, वेट लॉस की क्योंकि हिस्ट्री हो जो सकती है। ट्रीटेड पेशेंट के अंदर भी फाइब्रोसिस हो सकता है। ठीक है, जी सर। फाइब्रोसिस वाली चीज आ गई। दूसरी, जो अगर अभी रिसेंटली एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी है, तो एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं कॉमन? सर यूरिन कलर चेंजेस होते हैं उसमें, और लिवर प्रॉब्लम होती है, और और क्या होता है? देखिए, अब आपने यूरिन कलर प्रॉब्लम बताया, क्या ये एनेस्थेटिस के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं सर। नीला, पीला, काला, हरा, जिस कलर का मर्जी यूरिन आए, यूरिन आना चाहिए। जी सर। तो इसलिए वो चीज पहले बताएं जो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे से रिलेटेड लिवर प्रॉब्लम्स है, बोन मैरो की है। लिवर, बोन मैरो और न्यूरोपैथीज, जो इथेम्बुटॉल होता है, उससे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। इनमें एनीमिया होगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होगी? एंटी एपिलेप्टिक हो या एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी। इसके अंदर लिवर, एनीमिया, ये दो बातें आपने नहीं बोली। ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और एक आपने नहीं बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बता दे तो सबसे बेहतर है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। आप जो टीबी का पेशेंट आएगा, हम लोग तो सारे हम लोगों के लिए तो मसला नहीं है ना, हमारे मुल्क में तो ये सॉर्ट ऑफ बहुत ही कॉमन है। लेकिन एक्चुअली ये जिस पेशेंट में होता है, उसमें N95 मास्क पहनते हैं। ठीक है सर। ठीक है, उसमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन और क्या कहते हैं इसको, एयरबॉर्न। ठीक है, ये एयरबॉर्न होता है, क्योंकि जो ड्रॉपलेट होता है उसमें तो आप सिंपल मास्क पहन सकते हैं, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस होती है, लेकिन इसके अंदर एयरबॉर्न होता है, तो आपने N95 मास्क पहनना होगा अगर ट्यूबरकुलस पेशेंट, आप एक्टिव ट्यूबरकुलस पेशेंट कर रहे हो। और इसकी एग्जांपल होती है कि अक्सर इनका डायग्नोसिस के लिए इनके अंदर एक्टिव जो अगर पेशेंट होगा, तो इसके अंदर ब्रोंकोस्कोपी होती है। ये अक्सर पेशेंट प्रेजेंट करते हैं फॉर ब्रोंकोस्कोपी। तो इसका भी आंसर बहुत आसान है कि ये एक क्या डिजीज है, ये ग्रेनुलोमेटस लियन है, जिसके अंदर बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इवन आई के अंदर भी टीबी होती है, बोन के अंदर भी टीबी होती है, इंटेस्टाइन्स के अंदर भी टीबी होती है, लंग्स के अंदर भी टीबी होती है। ठीक है, ये किडनीज में भी टीबी होती है, हर जगह पे टीबी हो सकती है। ठीक है, तो यूजुअली इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन granulomatous lesion resulting in this problem if the patient is on taking on anti tuberculous medications। तो हमें चीजों को एहतियात करना होगा। जैसे आपने इनिशियली एक दो बातें बता दी है, सिर्फ उसके अंदर एक दो बातें एडिशनल है। अच्छा, अभी यही बात की है, तो इसी के साथ ही कर लेते हैं। सहरिश बताएगी, कोरोना का पेशेंट, हमाद आप बोल सकते हो? हमाद आप अगर बोलना चाहते हो, आपने कोई आंसर नहीं दिया। आईफोन हमाद हो ना? जी सर। प्लीज, आपने बहुत काम किया है डॉक्टर अशरफ जिया साहब के साथ, जरा कोरोना के पेशेंट की मैनेजमेंट बता दें। एक कोरोना का कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, उसकी कोई सर्जरी करवा दें आप, सिजेरियन सेक्शन है, कोविड पे पॉजिटिव पेशेंट है। माय आंसर सबसे पहले से
It will depend on history, examination, investigations. So हिस्ट्री में हम उनके देखेंगे कि ये इशू जो कोविड का है कब से, अभी हिस्ट्री हम ले लेंगे और उसमें हम साथ इसमें ये कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस होंगे हमारे। सबसे पहले तो हमने यानी जो यूज़ करने हैं N95 मास्क हम भी यूज़ करें, पेशेंट के लिए भी यूज़ होगा। उसके साथ सर हम इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा होगा इसके बाद जो लंग का इशू होगा तो हम इसमें मोस्टली चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन वो लाजमी होना चाहिए। सीटी स्कैन से हमें पता चलेगा कि कितने % लंग अगर डैमेज हुआ हुआ तो कितना लंग डैमेज हुआ हुआ है। और उसके अलावा इसमें हम CBC करवा लेंगे, उसमें देख लेंगे प्लेटलेट्स वगैरह तो नहीं कम हुई, इसमें ल्यूकोपीनिया हो जाता है या वो हम डिसऑर्डर देख लेंगे, ये देख लेंगे। और इसके साथ सर हम आपकी आवाज कट गई है हमाद। हमाद अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई एम सॉरी हमाद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जीशान इस आंसर को थोड़ा इम्प्रूव करो। रीजनल में प्रोसीड करेंगे। एक सेकंड हमाद, आई एम सॉरी आपकी आवाज कट गई थी, आप फिर से बोलने की कोशिश करो। अब अनम्यूट करो और दोबारा से बोलो। सर अब आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे? जी सर उसमें ये है कि जब हम उसको रीजनल में प्रोसीड करेंगे, वो करवा रहे हैं स्पाइन C सेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन हम इसमें ये है कि लेफ्ट लेटरल उसको वेज रख देंगे, उसमें अंदर लाजमी प्रोसीजर। और बाकी बेसिकली सर वही हमारा जो कंसर्न। देखो आपका ये आंसर जो है ना, स्टार्ट में अगर आप थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर लो तो बाकी सारी चीजें आपने सही बता दी। ठीक है, तो इसमें आपने ये है कि कोविड पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट, इट इज जस्ट लाइक अ फ्लू। तो फ्लू के पेशेंट में हम कोई एहतियातें करते हैं? कुछ भी नहीं करते ना। तो पहली तो बात ये है कि आपने ये देखना है कि कोविड की क्या सिविरिटी है। इट कैन हैव कोविड में बी सिंपल नथिंग फ्लू और इट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग मल्टी ऑर्गन फेलियर विद सेप्सिस एंड ARDS एंड वेब। ठीक है, हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। हाँ जी, तो आपने देखा कि कितना उसके अंदर उसकी वजह से एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम से लेके और उसके अंदर मल्टी ऑर्गन डैमेज तक हो सकता है। और इसके अंदर जो एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है ना, जो आपने मिस की है, वो आपने नहीं जिक्र किया कि इनके अंदर बहुत कॉमन होता है एम्बोलिज्म के चांसेस। ठीक है, इवन जो रेस्पिरेटरी जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं वो भी इनके एम्बोलिक फिनोमेना की वजह से हो रहे होते हैं, इसीलिए तो ट्रीट नहीं हो पा रहे होते। ठीक है, मैंने तो जितने कोविड के मरीज देखे हैं जी, वो गरीब ही होते हैं ना, उनमें पीठ का कोई इफेक्ट होता है ना। हाँ जी, तो वो डी डाइमर्स, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इंट्रावेस्कुलर कोagulation हो रही होती है, डी डाइमर्स बढ़ रहे होते हैं और DIC टाइप की पिक्चर होती है। ठीक है, तो इन एडिशन तो आपने एक तो ये कह दिया कि आपने उसकी इवैल्यूएशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन। सिविरिटी तो नहीं है, आप उसमें चेस्ट एक्सरे अगर जरूरत है तो आप चेस्ट एक्सरे के बाद CT स्कैन तो उस वक्त कराने की जरूरत होगी ना, कि जब अगर हो तो साथ ही आप सिविरिटी पे डिपेंड करेगा। और सिजेरियन सेक्शन इज एन इमरजेंसी सर्जरी सॉर्ट ऑफ ना, तो आप सर्जन के साथ डिस्कस कर लेंगे कि क्या भाई इलेक्टिव है या इमरजेंसी है। अगर इमरजेंसी होगा तो आपको तो प्रोसीड करना है, तो बेटर अगर फीटल डिस्ट्रेस नहीं है तो इट इज बेटर टू गो फॉर स्पाइनल। ठीक है, इवन अगर फीटल डिस्ट्रेस भी है तो यू कैन से कि देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ रैपिड सीक्वेंस स्पाइनल। ठीक है, वो आप लैटरल पोजीशन में करते हैं, को लोडिंग करते हैं, फौरी तौर पे आप उसको ब्लॉक लगा कर देते हैं। ठीक है, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि आपने एयरवेज में आपने ये कहना है कि यू हैव टू ट्राई एयरवे मैनिपुलेशन बिकॉज इट विल कॉज स्प्रेड टू द ऑल द पीपल अराउंड। तो आपने सिर्फ कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन नहीं है, ये एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न नियर विसिनिटी के अंदर वायरल लोड बहुत ज्यादा होगा, तो इसीलिए तो वो हुड जो पहनते हैं, तो वो आप हुड इसलिए पहनते हैं ना कि वो आप मास्क के भी इवन जो बियर्डेड है या जिनको N95 फिट नहीं होता उनको, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो जो हुड होता है, क्या कहते हैं उसको,
उसको क्या नाम है? टाइवेक सूट। हाँ, पेपर। सूट उसका पेपर का क्या एब्रीविएशन होती है? वो पेपर अभी कोरोना। हाँ, पीपीई कहते हैं ना सर? नहीं 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 नहीं, वो और चीज है। सब कुछ होता है ना। पीपीई तो जो आपकी आप जो ड्रेस पहनते ग्लव्स हैं से लेके एवरीथिंग इज पीपी। वो पीपी होता है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, जी वो जी और सर। चीज है। ये मैं आपको पेपर की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव पता नहीं, प्योरिफाइड एयर समथिंग इस तरह करके नाम है, कोई गूगल कर लो इसको। ठीक है, पेपर होता है वो, जो वो हुड नहीं पहनते, जो मशीन होती है कोविड में वो तो रिकमेंडेड नहीं है सर। क्या चीज? कोविड में तो उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? कोविड में क्योंकि जितना को प्रिकॉशन सीडीसी ने मतलब बोला था, वो तो सिर्फ यही था कि आपने N95 ग्लव्स एंड गाउन, अच्छा एक दैट इज सेकंड, जो इनफ। भाई मैं जो दाढ़ी वाला बाबा हो, फिर उसमें किधर सर जाएगा उनको अलाउड, N95? उनको या तो दाढ़ी काटनी है और दाढ़ी N95 पहनना काटनी है, या वो ना जाए, और या वो अगर ना जाए मिसाल इस पेशेंट के इसका घर। मिसाल के तौर पे अदनान समी की तरह का कोई एनेस्थेटिस्ट हो, वो क्या करेगा? वो तो आ जाएगा सर। पुराने वाला अदनान समी N95 जो N95 में फिट नहीं है, उनके लिए पेपर ही है भाई। जो N95 जिनको फिट है, वो पेपर के बगैर जा सकते हैं, अदरवाइज तो पेपर है। अदरवाइज और कोई चीज नहीं है। ये मैं इसको रिकन्फर्म कर लो, क्योंकि ये तो आप लोगों को सवाल पूछा जाना है। जहां तक मुझे पता है, यही बात मुझे पता है कि जो N95 फिट है वो N95 मास्क पहन सकते हैं। जो N95 फिट नहीं है, वो उनके दाढ़ी कटवाने का नहीं कहना है आपने। ठीक है ये एक मैंने बाय द वे दाढ़ी काटी थी, इतना मैं डर गया था। मैंने दाढ़ी काटी थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा, या तो मैं बिल्कुल ही क्लीन शेव हो जाता, उस वक्त तो कमबख्त बार बार भी बंद थे, तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। और फिर थोड़े दिन के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने वो जो दाढ़ी छोटी की थी, वो भी मैंने ज्यादती की थी। फायदा कोई नहीं था, पेपर के अलावा और कोई हल नहीं था। जिनको मास्क फिट नहीं होता, N95 आप यही बोलें कि जिस जो द पीपल हु आर फिट विद N95 maybe that is enough for them, but the people who are not fit for N, इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, who are not fit for N95 it is better for them to use paper। ठीक है, उसका आप एब्रीविएशन देख लेना कि उसका एब्रीविएशन क्या होता है। बाकी ये है कि जो है वो जो एक्सपोज पेशेंट होंगे उनको बाद में स्वैप करा लेना चाहिए, क्योंकि उनमें ट्रांसमिशन के ज़्यादा चांसेस होंगे। और आपने हमारा नेगेटिव प्रेशर रूम का नहीं जिक्र किया। नेगेटिव प्रेशर रूम की ज़रूरत होती है या नहीं? जहां पर भी टीबी का पेशेंट होगा या इस तरह की जहां पर आप सस्पेक्ट करेंगे एयरबॉर्न है, तो वहां पर नेगेटिव प्रेशर रूम होगा। एम राइट? ठीक है, ठीक है। क्यों ज़ीशान, एग्रीड और नॉट एग्रीड? अलवीना, सहरिश, कोई भी बता दे। अब आपके नंबर आने वाले, सहरिश रेडी हो जाओ। जी सर, बिल्कुल एग्रीड। ठीक है, ये देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपसे यही सवाल पूछ सकते हैं कि या तो वो बिल्कुल डिकम्पेंसेटेड टाइप का कोविड का पेशेंट होगा, या वो आपसे पूछ सकते हैं या आपका बिल्कुल स्टेबल पेशेंट है फॉर एनी सर्जरी। तो उसके अंदर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड ज्यादा होंगे। अगर कोई पेशेंट कोविड का है और एक्टिव कोविड में है और वो डिकम्पेंसेटेड है, उसमें कोई पेलिएटिव किस्म का प्रोसीजर हो रहा है या कोई उसके अंदर कोई ऐसा प्रोसीजर है, तो वो आपके लिए ज्यादा ट्रिकी होगा। लेकिन बेसिक बातें वही है, आईसीयू की केयर होगी, एस्पिरेशन का प्रोफाइलैक्सिस होगा, एस्पिरेशन कह रहा हूँ जो वैप का प्रोफाइलैक्सिस होगा। ठीक है, एंटीबायोटिक्स होंगी, वेजोप्रेसर्स पे हो सकता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होगा, स्पेशल उसके लिए जो आम आईसीयू जो ऑपरेशन थिएटर के वेंटिलेटर्स हैं, दे मे नॉट बी सुटेबल फॉर वेंटिलेटिंग अ पेशेंट विद कोविड, सो मे बी यू नीड आईसीयू वेंटिलेटर, क्योंकि जो जो जिनके अंदर स्पेशल मोड्स हों जो कि उसको को कर सके, क्योंकि इसमें तो हर तरह की ARDS की मैनेजमेंट चल रही होती है ना। ठीक, तो अच्छा, मेरे ख्याल एक सिनेरियो और कर लेते हैं। वो कौन सी डिजीज? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिक हार्ट डिजीज, यस। सहरिश एक पेशेंट है जिसको टाइट माइट्रल स्टेनोसिस है। ठीक है, and that is presented for elective cesarean section. Tight mitral stenosis for elective cesarean section. What will you do? Sir, पहले तो I will evaluate my patient according to history, examination and investigation. I would like to know the limitation of functional limitation of the patient and the treatment what she's taking and the compliance of the treatment and the effect of the treatment
on her mitral stenosis. यूजुअली कौन से पेशेंट्स कौन सी दवाइयां ले रहे होते हैं माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट, कौन सी मेडिकेशन ले सकते हैं? सर ले सकते हैं क्या मतलब कौन ले कौन रहे से होते हैं? पेशेंट पे होते हैं, ले रहे होते हैं, कौन सी मेडिकेशन पे सर होते हैं? ये बेसिकली ये जो है वो एंटी रिथमिक्स के ऊपर होते हैं, बीटा ब्लॉकर पे होते हैं, डायूरेटिक्स ले रहे होते हैं और वो एंटी कोगुलेंट्स ले रहे होते हैं। हाँ जी, ये आमतौर पे ये 3-4 बेसिकली एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है ना, माइट्रल स्टेनोसिस का एंड ऑर्गन डैमेज अल्टीमेटली जो है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर में होता है ना, पहले जी सर। पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होती है और बायोवेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है, प्लस स्टेसिस जी होता है तो उसकी वजह से क्लॉट बनता है और उसकी वजह से डॉट आपको एंटीकोएगुलेशन करनी पड़ती है क्योंकि सीवियर और कैरोटिड एम्बोलिज्म हो सकता है, पॉलिज्म स्ट्रोक हो होते सकता है। हैं। ठीक है, तो एक तो बात ये जी होगी। सर। तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन आप उसके जो है ना वो एको को आपका देख लेंगे, और एको में क्या क्या चीजें देखते हैं, वेल्वुलर हार्ट डिजीज के रेफरेंस से क्या चीज आपको पता होनी चाहिए? सर वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी देख लेंगे और नहीं, इसके हिसाब से सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? वेल्वुलर हार्ट डिजीज के रेफरेंस से सबसे पहले वेल्व साइज, वेल्व ट्रांस वेल्वुलर प्रेशर ग्रेडियंट, ट्रांस वेल्वुलर प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। और अगर रिगर्ज होगा तो आपने रिगर्जिटेशन फ्रैक्शन, ठीक है, रिगर्जिटेशन फ्रैक्शन, और उसके बाद आप चैम्बर क्लॉट, चैम्बर साइज, ठीक है, और उसके बाद फिर आप फेलियर के साइंस बता देंगे। तो फेलियर में वॉल मोशन एब्नॉर्मेलिटीज हो गई और आपके हाइपरटेंशन, ये पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर्स हो गए, ठीक है। तो ये उसमें से ये इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर स्टीनोटिक लियन है तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि वेल्व का साइज और वेल्व का ट्रांसवेल्युलर प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, ये आपने बता दिया। अगले स्टेप में क्या बताएंगे? प्रेग्नेंट पेशेंट है। सर फिजियोलॉजिकल चेंजेस वैसे ही होती हैं प्रेगनेंसी की, तो हम इसमें भी जो है वो इवेल्युएट कर लेंगे कि इनको और कोई मसले तो नहीं हो रहे उन्हीं चेंजेस के साथ साथ। ठीक है, और मतलब आपको वारफेरिन पेशेंट, ये वारफेरिन पे होगी, आप कंसल्ट कर लेंगे कार्डियोलॉजिस्ट से। प्रेगनेंसी के अंदर वारफेरिन इज अ कंट्रोवर्शियल थिंग अकॉर्डिंग टू सम गाइडलाइंस, दे आर गिविंग वारफेरिन। नहीं तो अगर वो वारफेरिन पे नहीं होगी तो वो एंटीकोएगुलेंट्स पे होगी, ठीक है, ब्रिजिंग जी सर। तो वही चीजें ऑप्टिमाइज करवा लेंगे हम कार्डियोलॉजिस्ट से। हाँ जी, आपका कार्डियोलॉजिस्ट की हेल्प से आप उसकी वारफेरिन थेरेपी को ऑप्टिमाइज कर लेंगे, आप उसको कन्वर्ट कर देंगे। अगर वो वारफेरिन भी ले रही है तो भी आप उसको कन्वर्ट कर देंगे एंटीकोएगुलेंट्स पे, क्योंकि ओरल आप उसको बंद करके आप उसको हेपरिन या क्लेक्सेन पे आप उसको कर देंगे, ठीक है जी सर। और फिर सर इसके अलावा सर कि उसका जो एनेस्थीसिया का प्लान है सर्जन से हम डिस्कस करेंगे, आइदर इट इज इमरजेंसी सर्जरी और इलेक्टिव सर्जरी, तो उस हिसाब से फिर हम प्लान करेंगे। अगर इमरजेंसी सर्जरी है तो ऑफ कोर्स फिर हम यही करेंगे कि पेशेंट की किस ड्यू टू व्हाट रीजन सीजर हो रहा है। अगर चांसेस ऑफ हाई ब्लीडिंग है तो ऑफ कोर्स हम जो है वो रिस्क वर्सेस बेनिफिट के ऊपर जो है उसको जीए देंगे अगर ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हैं, या अगर पेशेंट को स्पाइनल तो नहीं, ये पेशेंट माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट में आपके गोल्स क्या होते हैं? माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट के अंदर जो गोल्स होते हैं ना, वो गोल्स होते हैं कि आपने एसवीआर को, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को हाई रखना। वो आपने ये लफ्ज ये ना बोलें कि हाई रखना है, आपने ये कहना है कि यू डोंट लेट द एसवीआर टू गो डाउन, ओके, and you don't have to let the heart rate to decrease, no, to go up, यानी कि आपने इसके लिए लफ्ज याद रखें स्लो एंड टाइट, स्लो एंड टाइट फॉर स्टेनोटिक। तो स्लो का मतलब ये है कि आपने लोअर नॉर्मल में रखना है, आपने हार्ट रेट बढ़ने नहीं देना, और एसवीआर को टाइट में रखने का मतलब है कि आपने एसवीआर कम नहीं होने देनी, एसवीआर ज्यादा भी नहीं कहना। अगर आप कह रहे हैं ना एसवीआर ज्यादा रखेंगे तो हार्ट तो बेचारा पहले ही काम नहीं कर पा रहा, आपने एसवीआर बढ़ा दी तो हार्ट तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो मकसद एसवीआर बढ़ाना नहीं है, मकसद है एसवीआर कम नहीं होने देनी। ये एक थोड़ी सी एक ज़हन में रखें ये बात। और बाकी जो है कि साइनस रिदम रखनी है, ठीक है, आपने जो है वो हार्ट के जो फिलिंग प्रेशर वो भी अवॉइड करते हैं ना, एफिब अवॉइड करेंगे, एओर्टो केवल कंप्रेशन को अवॉइड करेंगे जी। और बेसिकली इसके अंदर कोई भी जो चेंज, क्योंकि कार्डिक आउटपुट इसका फिक्स है,
इसका फिक्स कार्डिक आउटपुट है। अगर इसके वीनस रिटर्न बहुत कम हो जाएगा तो ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है जी सर, और अगर आप उसको फ्लूइड अगर आप उसको ज्यादा दे देंगे तो ओवरलोड में चला जाएगा, और अगर आप फ्लूइड कम देंगे तो पेशेंट को हाइपोवोलेमिक में और ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। तो ये आपने बात उनको बता देनी है तो इसमें इमरजेंसी केस में हम कोएगुलोपैथी को मेंटेन नहीं कर सकते कि हम स्पाइनल दें? ये भी रीजन है, लेकिन आप ये बोलने की जरूरत नहीं है। आप उसमें ये बोले कि ये पेशेंट स्पाइनल तो बिल्कुल भी नहीं है, एपिड्यूरल आप कर सकते हैं। एपिड्यूरल आप कह सकते हैं, ग्रेडेड एपिड्यूरल विद कॉशियस आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि इट इज इजियर टू डिफेंड जीए देन रीजनल, ठीक है। आप उसमें डिफेंड करना मुश्किल उनसे कहें कि आप देखें रिस्क वर्सेस बेनिफिट है। इसके अंदर कौन सा जीए स्पाइनल पे तो मैंने आपको बता दिया, जीए में कौन सा स्टेप होता है जो कि खतरनाक होता है? इंट्यूबेशन। Laryngoscopic stress response is very dangerous in these patients because they can decompensate. उनमें अगर आपने laryngoscopic stress response को आपने ब्लंट नहीं किया तो इवन यूजुअली आप ओपियाइड्स नहीं देते, लेकिन इस सिनेरियो में आप कहेंगे कि भाई आप न्यूरोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करके आप उसमें शॉर्ट एक्टिंग ओपियाइड्स देंगे, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू ब्लंट द रिस्पॉन्स। और एनेस्थेटिक मेडिकेशन कौन सी, इंडक्शन एजेंट कौन सा बेहतर है देना? सर इंडक्शन एजेंट इनमें जो है वो हम प्रोपोफॉल भी दे सकते हैं अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो आप प्रोपोफॉल दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप एटोमिडेट दे दें। जी सर, कार्डियोसेलेक्टिव नहीं कार्डियोसेलेक्टिव के लिए नहीं, उससे हीमोडायनामिक इफेक्ट उसका कम होता है, ठीक है पेशेंट ठीक है। तो आप प्रोपोफॉल कहना ही होता है टाइट्रेटेड डोजेस आप इंडक्शन, ठीक है। आप उसमें रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के बजाय मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन कहते हैं, ठीक है मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन विद रोक्रोनियम एंड सुगामेडेक्स। इसकी एक रीजन ये भी है कि आपने रिवर्सल एजेंट को ध्यान से देना है या नहीं देना। उसकी वजह ये है कि रिवर्सल एजेंट से टैकीकार्डिया होने के चांसेस होंगे, कार्डियक इंस्टेबिलिटी हो सकती है रिवर्सल एजेंट से, इवन इफ यू आर गिविंग ग्लूकोपारोलेट, ठीक है। तो अगर आपके पास सुगामेडेक्स की अवेलेबिलिटी है तो देन इट इज बेटर टू यूज रोक्रोनियम। इफ इट इज नॉट देयर then you can start with saxamethonium and then you can give cisatracurium जिसमें आपको रिवर्सल ना देना पड़े, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज 100% सेफ नहीं है। अगर आप जो भी बोले saxamethonium दे रहे हैं तो उसकी वजह से भी हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी हो सकती है, इंस्टेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इससे ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस होंगे। दो के ब्रेडिकार्डिया के वाइस cisatracurium और retracurium में कोई डिफरेंस है? cisatracurium यार देखो, cisatracurium का जो है वो हिस्टामिन रिलीज नहीं होती ना, तो इसके अंदर हिस्टामिन रिलीज भी आपको वेजोडाइलेटेशन कर सकती है ना। सक्सामेथोनियम में भी हिस्टामिन रिलीज का ही चक्कर है, क्योंकि सिसैट्राक्यूरियम एक ऐसी मेडिकेशन है जिससे हिस्टामिन रिलीज मिनिमम है, बल्कि नहीं है, ठीक है। तो आप असल में यार थ्योरेटिक अवेलेबल ही नहीं होती सिसैट्राक्यूरियम, तो सऊदी अरब में कहीं नहीं मिलती, लेकिन ये है कि सिसैट्राक्यूरियम बहुत अच्छी मेडिकेशन है। तो यहाँ पर तो क्योंकि सुगामेडेक्स अवेलेबल होती है, तो इतने सालों से तो मैंने कभी 11 साल से शायद मैंने 1 या 2 दफा सक्सामेथोनियम यूज किया, कभी यूज किया ही नहीं है आज तक, कभी किसी भी पेशेंट में सक्सामेथोनियम यूज किया ही नहीं है मैंने, तो भूल ही गया हूँ कि सक्सामेथोनियम कैसे यूज करते हैं। एनीवेज, तो ये एक इसमें चीज है। बाकी आप इंट्राआर्टेरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का कह दें आप, जो है वो क्या नाम है इसका, ये आपने कहना है कि भाई इसमें आपने गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी का जिक्र कर दें, ये जुमला बोल दें, गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर, मेंटेन एसवीआर, मेंटेन साइनस रिदम, मेंटेन वॉल्यूम स्टेटस। ये जो 5-6 चीजें हैं ना, वो सारों को मेंटेन करना है। साइनस रिदम, वॉल्यूम, क्या नाम है उसका, आफ्टर लोड, प्री लोड, और क्या चीज होती है, प्रीलोड होता है, आफ्टर लोड होता है, सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस होती है, साइनस रिदम होती है, वॉल्यूम स्टेटस होता है, ब्लड प्रेशर होता है जी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो मतलब बेसिकली आपने ना इसके अंदर आप ज़हन में रखें कि ये अगर आप इसमें फैंसी बनने की कोशिश करेंगी तो फिर आप भूल जाएंगी। तो जनरलाइज याद रखें कि कोई भी कार्डिक, यही तकरीबन बातें आप कार्डियोमायोपैथी में भी बता सकते हैं। कार्डियोमायोपैथी में भी आपने स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर को अवॉइड करना है,
आपने एक मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो को मेंटेन रखना है, आपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ब्लंट करना है, ठीक है, आपने जुडिशियस फ्लूइड मैनेजमेंट करनी है। मुझे बताएं क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फर्क क्या है उसके अंदर आपने कह देना है कि भाई वाल्वुलर जो रिगर्जिटेशन की लियंस हैं, रिगर्जिटेशन की लियन में आपने ब्रेडिकार्डिया नहीं होने देना, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया होगा तो रिगर्जिटेशन बढ़ जाएगी। और आपने सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ने नहीं देना, क्योंकि अगर सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रिगर्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यूजुअली आपने मेंटेन रखना होता है, यू जस्ट हैव टू कीप द पेशेंट इन द बेसलाइन, ठीक है, आपने ऊपर नीचे नहीं होने देना। तो अब ये चीजें इस तरह बताना आपके लिए आसान हो जाएगा। इफ यू आर प्लानिंग टू यूज वेसोप्रेसर्स, then it is better to take CVP. Otherwise, if you just want to maintain the volume hemodynamics, even arterial line is sufficient to do ABGs and to have blood pressure control and to monitor the fluid status with the interpretation of the waveform as well as stroke volume variation. ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन होती है कार्डिक, ये इसमें आपको इवन इंट्राआर्टेरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में भी पता चल जाता है। इसकी हाई फाई ज्यादा एडवांस कार्डिक आउटपुट होता है, लेकिन आप इंट्राआर्टेरियल ब्लड प्रेशर में भी ये याद कर लें कि केयरफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेवफॉर्म कैन गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉल्यूम स्टेटस, अबाउट द SVR। आपके वेवफॉर्म से पता चल जाता है ना, तो आप ये इसको आप देख लें, ठीक है। बाकी ये है कि आप इसको, आपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपने इंडक्शन पे भी ब्लंट करना है, आपने एक्सट्यूबेशन पे भी ब्लंट करना है। एपिड्यूरल आप लगा सकते हैं फॉर एनाल्जेसिया, ठीक है, क्योंकि जब आप एनाल्जेसिया के लिए एपिड्यूरल लगाएंगे विद केयरफुल टाइट्रेशन ऑफ द एंटीकोएगुलेशन, ये जब आपने इस किस्म के मरीजों में जिसमें एंटीकोएगुलेंट चल रहे हों तो आपने ये जरूर जुमला बोलना है कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट। और आप देखेंगे कि अगर आपकी उसकी एंटीकोएगुलेशन मेंटेन आप कर रहे हैं, आप उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो आप एपिड्यूरल विल बी हेल्पफुल फॉर ब्लंटिंग ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स and you will be giving like diluted dose with opiate, ठीक है, उसमें क्योंकि आप 0.1% दे रहे होंगे जिसके लेस हीमोडायनेमिक इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो एपिड्यूरल को आप इस तरह डिफेंड कर सकते हैं, एपिड्यूरल को आप इस तरह डिफेंड कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि देखो करने को तो माइटल स्टीनोसिस में स्पाइनल में भी लोग करवा देते हैं, कुछ नहीं होता। मैंने 110 साल के एक बुजुर्ग को जो मैं रेजिडेंसी में मैंने करवाया था, मैं बैठ के सोचता हूँ उसके बाद मैंने कभी आज से कभी 110 साल के बुजुर्ग को एनेस्थीसिया नहीं दिया होगा। वो उस वक्त इतना चैंपियन था कि वो क्या नाम है उसका, डिजेनरेटिव उसको एओर्टिक स्टेनोसिस थी, लेकिन वो पेशेंट की सिचुएशन ऐसी थी कि उसको जीए भी नहीं दिया जा सकता था, उसको स्पाइनल में लो डोज दे के यूनिलैटरल करके। और मैं हैरानी की बात ये थी कि शायद नॉर्मल पेशेंट में ज्यादा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, उस पेशेंट में कुछ भी नहीं हुआ था। ये मैं आपको अपनी मेमोरी बता रहा हूँ, लेकिन आप ये बातें एग्जाम में नहीं बता सकते। एग्जाम में अगर आपने स्पाइनल लगा दिया तो वही जो सुबह मैंने कहा था 15,000 रेडी रखें, 15,000 आपके बुक हो गए। अगर आपने एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट एयरवे के अंदर आपने रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करवा दी, या डिफिकल्ट एयरवे में आपने इनहेलेशनल रिस्क ऑफ एस्पिरेशन के पेशेंट में आपने इनहेलेशनल इंडक्शन करा दी, तो 15,000 आप दोबारा से रखें। ये नासिर की याद में है, नासिर फ्रॉम इंडस हॉस्पिटल कराची। तो मेरे ख्याल अभी के लिए काफ़ी है। आप लोगों को इंशाल्लाह मैं, आप लोग देखें, एक मैं बार बार मेरे कहने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि आप लोग पहले तो अपने ऊपर भरोसा करें, कॉन्फिडेंट रहें, और वहाँ पर इतनी मुश्किल चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के बजाय ना अपने आप को अपने आने वाले दिनों में मोटी मोटी चीज़ों पर रखें कि कार्डिक सिस्टम अगर इवेलुएट कैसे होता है, कार्डिक सिस्टम डिकम्पनसेट कैसे होता है, और कार्डिक सिस्टम को मॉनिटर कैसे किया जाता है, ठीक है। इन 3 सवालों में आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चले भाई, ओके, अब मेरा मूसा मेरे पास आ गया इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह फिर बात होती है, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर।